Morning student. Today I am going to start second chapter of commerce, that is financing. There are three important topics are there, and under that topic subtopics are there that which we have to discuss in this chapter. Very interesting chapter, and when you will see all the topics of the chapter finance, you will find that you are knowing all the terms. So let us begin this chapter from the topic business finance. Now business already you had learned in your previous class that business means that whatever the activities we are performing for the money, means हम जो भी activities कर रहे हैं पैसे के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं business. यानी कि in other words we transfer all goods and services from one place to another. For what purpose? For money. So when we are transferring any goods and services from one place to another, that is our business, because in returns we are getting money. Now the topic is business finance. Now finance means what? Finance का मतलब होता है money, that is पैसा. When we add with the word business finance, तो इसका मतलब हो गया वो पैसा जो कि हम बिजनेस के लिए यूज करते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, ये पैसा आएगा कहां से? फ्रॉम वेयर वी विल गेट दिस मनी? सो दिस मनी आइदर वी ऑलरेडी हैव टू स्टार्ट अवर बिजनेस, और वी आर टेकिंग फ्रॉम अवर नेबर्स, अवर रिलेटिव्स, और फ्रॉम बैंक्स. सो दैट इज बिजनेस फिनेंस. बिजनेस करने के लिए जो पैसा हमें चाहिए उसको बोलते हैं बिजनेस फिनेंस. नाउ यू कैन सी बिजनेस फिनेंस refers to money and credit employed in the business firm. अब जो पैसा मेरे पास है वो हो गया refers to money, वो मेरे पास पैसा है already and that money I'm using into my business as a capital. लेकिन अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो वो पैसा मैं क्रेडिट पे लूंगी. किससे लूंगी वो पैसा? आई कैन टेक दैट मनी फ्रॉम माई रिलेटिव्स, फ्रॉम माई नेबर्स. अगर वो नहीं है, फ्रेंड्स से मैं ले सकती हूँ वो पैसा. एंड इफ नोबडी इज हेल्पिंग मी, देन आई विल टेक बोरो मनी from the banks, or there are many financial institutions are there, they will help you in that finance. So business finance means, business finance refers to money and credit employed in the business finance. So this is the meaning of business finance. Let us see what is the definition. So the definition of business finance is what? Business finance may be defined as a planning, raising, managing and controlling all the money or the capital funds of any kind used in the connection of the business. अब अगर हमारे पास पैसा है तो lot of ideas will come in our mind. पैसा अगर नहीं है तो कोई आइडियाज नहीं आती है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास बहुत सारी आइडियाज आती है. और अगर पैसा नहीं है तो हमारे पास, हमें क्या सोचना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आएगा, अगर आया तो इसको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे कि वी विल गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट्स. तो बिजनेस फिनेंस बोल रहा है कि डिफाइंस एज अ प्लानिंग. बिजनेस फिनेंस क्या है? एक प्लानिंग है. अगर मेरे पास पैसा है और मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है तो आई एम नॉट एबल टू डू एनी बिजनेस. अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मेरे पास एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि हाउ आई विल यूटिलाइज माई मनी इनटू माई बिजनेस. रेजिंग, कहाँ से पैसा आएगा? अगर इफ आई डोंट हैव अ मनी तो मैं पैसा कहाँ, मुझे बिजनेस करना है तो मैं पैसा कहाँ से आएगा मेरे पास? सो दैट मनी आई कैन रेज. I already explained you the different sources are there. I can raise that money either from my neighbors, from my relatives, from my friends, and if nobody is helping me, I can raise this money from the bank. I can borrow money from the bank. Managing, अब पैसा आ गया, उस पैसे को बिजनेस में किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना है ये भी आपको आना चाहिए. So business finance is not a very small term, it is wide term. And controlling all the money. So if you have a money, you must know how to control
हाउ यू हैव टू कंट्रोल दैट मनी इनटू द बिजनेस। तुम्हारे पास ये दिमाग होना चाहिए कि किस तरीके से मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ही एक तरीके का कंट्रोलिंग होता है बिजनेस में। और अ कैपिटल फंड ऑफ एनी काइंड ऑफ यूज्ड इन कनेक्शन विद द बिजनेस, और कोई और चीज बिजनेस फाइनेंस को लेकर के जिसका कनेक्शन बिजनेस से है, वी शुड नो इट वेरी वेल। सो ओवरऑल बिजनेस फाइनेंस may be defined as a planning, raising, managing, controlling all the money or the capital funds of any kind used in the connection of the business. So this is the definition of business finance. Now let us see the nature of business. The first nature of business is business finance include all type of capital or funds. All type of capital or funds का मतलब क्या होता है? वही द कैपिटल विच आई ऑलरेडी हैविंग, मेरे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, या मैंने वो पैसा अपने रिलेटिव से ले लिया, या मैंने वो फंड अपने फ्रेंड से ले लिया, या मैंने फंड रेज किया बैंक से। तो बिजनेस फाइनेंस हर तरीके के कैपिटल और फंड्स को इंक्लूड करता है। Secondly, business finance is needed in all types of business. It may be small, large, manufacturing and trading. देखो, it is very clear. Without money, we cannot think of any business. अगर एक मुझे चाय का ठेला भी लगाना है, तो मुझे पैसा चाहिए। अगर मुझे एक छोटा सा शॉप खोलना है, तो भी मुझे पैसा चाहिए। So without money, I cannot think of any business. So money is very important. Why money is very important? Because it is a blood. It is a blood. जैसे एक शरीर के लिए ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है रन करने के लिए, उसी तरीके से बिजनेस करने के लिए मनी वर्क्स एज ए ब्लड। सो बिजनेस फाइनेंस नीडेड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, चाहे बिजनेस छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग बिजनेस हो, किसी भी तरीके का बिजनेस हो, इट नीड finance. Next feature is business finance is a wide term. मैंने already बताया कि business finance is not very small term. It is a very wide term. How it is wide term? If I have a money, I should know it very well. How to invest that money? उस पैसे को मुझे किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, this I should know, and then overall I must have a control on that finance. Otherwise मैंने जहां पैसा लगाया वो पैसा मेरा जीरो हो जाएगा if I don't have a control on my finance. So that is why we can say कि business finance is a wider term. Now next nature of business is the amount of business finance required for a business differ from one business to another depending on its nature and size. Of course, हर एक बिजनेस जो है उसकी साइज, उसका नेचर अलग अलग होता है। स्मॉल स्केल का बिजनेस है तो कैपिटल फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस उसमें कम लगेगा। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है, डे बाय डे बहुत ही ग्रो कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो बिजनेस फाइनेंस बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि अगर तुमको एक चाय का दुकान खोलना है तो उसमें फाइनेंस तो लगेगा, बिना फाइनेंस के तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी टी शॉप ऑल्सो। तो वहां पे भी पैसा लगेगा, लेकिन वहां पर पैसा आपका कम लगेगा इफ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टैब्लिशिंग अ प्लांट। तुम्हें एक प्लांट स्टैब्लिश करना है, प्लास्टिक बनाने का एक प्लांट स्टैब्लिश करना है, तो वहां पे तुम्हें मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर तुमको टी स्टॉल के लिए तुम्हारा क्या क्या सामान चाहिए, तो अगर हम कंपेयर करें मशीनरी और टी स्टॉल के रिक्वायरमेंट से, तो दोनों में डिफरेंस है। सो दैट इज व्हाई बिजनेस फाइनेंस डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस। जितनी बड़ी बिजनेस होगी उतना ज्यादा फाइनेंस चाहिए, छोटा बिजनेस होगा तो फाइनेंस की रिक्वायरमेंट वहां पे कम होगी। The availability of finance determine the scale of operation of a business. The availability of finance, you can see, पैसा, मैंने बताया ना, बिना पैसे के कोई भी आइडियाज नहीं आते। पैसा है तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज आएंगे। पैसा अगर है तो आप हमेशा सोचोगे अच्छा इससे ज्यादा बेटर हम कर लें।
कम पैसा है तो आप उतने में ही सोचोगे, लेकिन अगर आपके पास पैसा है और आप उस काम को और बेहतर कर सकते हो उस पैसे से, तो यू कैन ऑलवेज डू इट बेस्ट, बट दैट इज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस. डिटरमाइन द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस. अब ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस क्या होता है? ऑपरेशन ऑफ बिजनेस का एंड एक ही चीज होता है, दैट इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. देखो, द गोल ऑफ एवरी बिजनेस इज ओनली वन, दैट इज टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. पहले क्या था कि सिर्फ एक ही गोल हुआ करता था किसी भी बिजनेस का, कि बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, प्रॉफिट्स खूब ज्यादा कमाना है. लेकिन अगर मैंने प्रॉफिट्स कमा लिया एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइंग माय कंज्यूमर, आई एम नॉट सेटिस्फाइंग माय कस्टमर, देन one time though I had earned lot of money, but the second time I'm not going to earn lot of money. Why? Because I'm not satisfying my customer. क्योंकि मेरा पहला चांस था, इसलिए कस्टमर ने मेरा सामान खरीदा. लेकिन if I'm not satisfying my customer, then I'm not going to stay in a market for a long time. तो now the trend is changed. अब business क्या बोलता है? Now the business says earn more and more profit with effective and efficient utilization of all the resources, and the most important is satisfy the king of the market. Now who is the king of the market? Customer is the king of the market. तो scale of operation of a business का मतलब हो गया कि पहला चीज तो फंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, और जब फंड की अवेलेबिलिटी होनी है आपके पास तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए बिजनेस के सारे ऑपरेशन में. मेरे पास पैसा है तो मेरे दिमाग में आएगा ओके, मेरे पास ये वाली मशीनरी होनी चाहिए, लेबर्स हम बढ़ा सकते हैं, वी कैन टेक अ क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम द नॉलेजेबल पर्सन, है ना, स्कॉलर्स पर्सन, वी कैन टेक एन आइडिया. इन सब के लिए वी नीड अ मनी. सो दैट इज व्हाई द लास्ट nature of the business is what? That the availability of finance determine the scale of operation of a business. So I discussed first point, that is business finance. Business finance refers to money or the credit employment in a business firm. Definition of business finance is what? Business finance may be defined as planning, raising, managing and controlling the money, capital's fund of any kind used in connection with the business. Now we can see the nature of the business once again. The first nature of the business is what? Business finance include all type of capitals or fund. Business finance is needed in all type of business. It may be small, large, manufacturing or trading. Business finance is a wide term. The amount of business finance required for a money differ from one business to another depending on its nature and the size. And the last nature of business that the availability of finance determines the scale of operation of a business. Our next topic is importance of business finance. How much business finance is important in our business, that we have to understand in our next topic, that is importance of business finance for a business. Importance of finance for a business. Finance is the lifeblood of business. ये मैंने पहले ही बताया है कि finance is what? It is a lifeblood of any business. There must be continuous flow of funds in and out of business. Money makes the wheel of business run smoothly if it is managed efficiently. There must be a continuous flow of funds in and out. यानी कि business को अगर हमें smoothly चलाना है तो फंड की जो अवेलेबिलिटी है वो हमेशा business में बनी रहना चाहिए. And that is why we can say that कि finance is just like a wheel for a business. जैसे एक अगर गाड़ी को चलाना है तो उस गाड़ी को चलाने के लिए what we need, अगर उसकी व्हील्स नहीं होंगी, दैट इज अनदर थिंग कि आपको गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत है. लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब तक गाड़ी में व्हील नहीं होगी, वी कैन नॉट थिंक ऑफ इट कि गाड़ी हमारी सड़क पे दौड़ सकती है. तो फिनेंस भी क्या है? किसी भी बिजनेस के लिए एक व्हील की तरह है. अगर इसकी अवेलेबिलिटी है तो हमारा बिजनेस बहुत ही स्मूथ
स्मूथली चलेगा, our business will run very smoothly, and that is why we can call कि finance is the lifeblood of a business. Business enterprise required capital for three main purpose. ये थ्री मेन पर्पज है जिसके लिए कि हमें बिजनेस में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, फिनेंस की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में. लाइक नंबर 1, फाइनेंसिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इज फाइनेंसिंग फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट. अब कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स्ड कैपिटल यू नो इट वेरी वेल कि कैपिटल को हम लोग फिक्स रूप में कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं. लाइक आई हैव टू परचेज लैंड, वो कैपिटल नेचर का है. मुझे प्लांट खरीदना है, कैपिटल नेचर का है. फर्नीचर खरीदना है, कैपिटल नेचर का है. मशीनरी खरीदना है, कैपिटल नेचर का है. तो अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो वी नीड एवरीथिंग. वी नीड प्लांट, वी नीड फर्नीचर, वी नीड मशीनरी, वी नीड लैंड. So these are the important areas where we need capital. Which type of capital? That is a fixed capital. Financing fixed capital requirement, that is purchase of land, building, plant and machinery, furniture, etc. So this is the first requirement of finance in any business enterprises. Now see the second one. फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यानी कि ऐसा कैपिटल जो कि हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में ज़रूरत पड़ती है. एवरी डे वी आर परफॉर्मिंग एन एक्टिविटीज़. इफ आई एवरी डे आई एम परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटीज़ फॉर माई बिजनेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी. सो फॉर दैट पर्पज आई नीड अ कैपिटल एंड दैट कैपिटल इज नोन एज एन वर्किंग कैपिटल. यानी कि हर दिन काम करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल. अब नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वर्किंग कैपिटल? द यूज ऑफ दैट वर्किंग कैपिटल, दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. हमें रॉ मटेरियल खरीदना है तो वी नीड अ फिनेंस. पेमेंट ऑफ वेजेस, लेबर्स आर वर्किंग, so for that we have to make a payment to the laborers. So for that I need a wages, payment of salaries, पेमेंट ऑफ फ्रेट एक्सेट्रा. ये हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में आती हैं एंड दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट एज एन वर्किंग कैपिटल. सो फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरी, पेमेंट ऑफ फ्रेट. तो नंबर 1 फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट था, दैट इज फॉर द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट. सेकेंड हो गया दैट इज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. थर्ड, फाइनेंसिंग ग्रोथ and expansion programs. Financing growth and expansion program. If I am doing a business, my motto is very fixed. I have to earn more and more profit. So if I had earned more and more profit, then what I will do next? I will keep it some profit for the development and the growth of my business. हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो जो बिजनेस कर रहा है उसको और एक्सपैंड करे, उसका डेवलपमेंट हो, उसका ग्रोथ हो. अगर एक मैंने छोटी सी चाय की दुकान खोली तो आई विल नॉट लिमिटेड टू दैट टी स्टॉल. अगर एक चाय की दुकान खोल दी तो मेरे दिमाग में क्या होगा कि मेरा एक अच्छा सा इससे थोड़ा सा एक शॉप हो जाए. जब शॉप हो जाएगा तो उसके बाद मैं सोचूंगी एक रेस्टोरेंट हो जाए. रेस्टोरेंट हो गया तो मैंने क्या सोचा कि भाई मेरे होटल हो जाए. होटल हो गया तो मैंने सोचा कि भाई इसके चेन खुल जाए पूरे ऑल ओवर इंडिया में. तो हमेशा बिजनेस जो होता है वो डेवलप होता है. अगर आप इफ़ यू आर वर्किंग वेरी इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, यू आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस ग्रो करेगा. बट उन सब के लिए ओवरऑल एक ही चीज़ चाहिए, दैट इज़ अ फिनेंस, दैट इज़ अ मनी. सो financing growth and expansion programs के लिए भी we need a finance. For providing sufficient capital to the business, several sources of finance have to be tapped. These include shareholders, debenture holder, fixed depositors, बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखो एक तो अपना पैसा होता है, एक हो गया लेबर से ले लिया, एक हमने रिलेटिव से ले लिया. उन सब के अलावा देयर आर अदर सोर्सेज आर देयर ऑफ फाइनेंस.
वो सोर्सेस क्या होगा, शेयर होल्डर से पैसा क्रिएट कर सकते हैं, डिवेंचर होल्डर से पैसा क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिक का फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं अपने बिजनेस में, बैंकर्स से पैसा ले सकते हैं, many financial institutions are there, from there we can take money. So overall you had seen the importance of finance in three categories. One is financing is needed for capital requirement, fixed capital requirement, financing is needed for working capital requirement, financing is needed for the growth and the expansion of the programs. Okay. Now, if your business finance raised adequate funds for the business, then what are the benefits that to be discussed now? If a firm is able to raise adequate finance, following are the benefits. अगर हमारे फर्म ने जितना फिनेंस हमको चाहिए था उतना अगर रेज कर लिया, हमारे पास अगर उतना पैसा है तो उसकी क्या बेनिफिट्स होगी, लेट अस सी दैट. नंबर 1, बिजनेस साइकिल फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स विल रन स्मूथली. प्रोडक्शन करने से लेकर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक कोई भी अगर प्रॉब्लम आती तो दैट वी कैन सॉर्ट आउट वेरी इजीली. व्हाई? बिकॉज वी हैव अ फाइनेंस. हमारे पास पैसा है और पैसा एक व्हील की तरह है, एक ब्लड की तरह है, जो कि किसी भी चीज़ को, बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए तैयार कर सकता है. जैसे मैंने बताया कि गाड़ी में अगर व्हील लगा दो तो गाड़ी को अच्छे से चला सकते हो. तो सेम वे बिजनेस साइकिल फ्रॉम प्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूशन. आई थिंक बिजनेस साइकिल इज अ नोन टर्म फॉर यू. दिस इज एन इकोनॉमिक्स टर्म, दैट इज अ ट्रेड साइकिल को ही बिजनेस साइकिल बोलते हैं. तो प्रोडक्शन से लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती अगर हमारे पास फिनेंस है और हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है. सेकेंड बेनिफिट, द फर्म वुड एबल टू इंस्टॉल द लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी. मैंने बताया ना, पैसा अगर है तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं, पैसा नहीं है तो कोई आइडियाज नहीं आता है. तो इफ़ वी हैव अ फिनेंस, अगर हमारे बिजनेस में फिनेंस है तो हम अपने प्रोडक्शन को कितना बढ़ा सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकते हैं. इसके लिए अगर हमें लेटेस्ट प्लांट एंड मशीनरी चाहिए और हमारे पास पैसा नहीं है तो वो बेकार है, हम खरीद नहीं सकते. लेकिन अगर हमारे पास फिनेंस है, हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, क्वालिटी ऑफ गुड्स अच्छा करना है, देन वी कैन ईजिली बाय प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम द market. Second, third benefit, there will be no storage of raw material and other things. No storage. हम स्टोर कहाँ करते हैं? कोई भी सामान को हम लोग स्टोर करते हैं वेयर हाउसेस में. बिजनेस में हमेशा हम कोई भी सामान को जो रॉ मटेरियल है दैट ऑलवेज बी स्टोर इन अ वेयर हाउसेस. नाउ उसको वेयर हाउसेस में क्यों स्टोर किया जाता है? स्टोर इसलिए किया जाता है कि हो सकता है कि इसकी अवेलेबिलिटी अभी सस्ते दामों पे मिल रहा है तो उसको खरीद लो, या फिर पता नहीं भविष्य में हमारे पास पैसा होगा कि नहीं होगा. तो ये सारे माइंड्स में जब चीज़ें आती हैं और पैसा अगर हमारे पास अभी है तो पीपल स्टार्ट बाइंग रॉ मटेरियल एंड दे विल स्टोर इन अ वेयर हाउसेस. लेकिन अगर हमारे पास एक स्मूथ फ्लो ऑफ फिनेंस है सो देयर इज नो नीड ऑफ स्टोरिंग द रॉ मटेरियल इन अ वेयर हाउसेस. क्योंकि अगर वेयर हाउस में स्टोर करते हो, प्रॉपर केयर नहीं है तो देर इज लॉट ऑफ चांसेस ऑफ स्पॉइलेज ऑफ गुड्स ऑल्सो. सो इफ वी हैव अ फिनेंस देन देर इज नो नीड ऑफ स्टोरिंग द रॉ मटेरियल एंड अदर थिंग्स. नेक्स्ट बेनिफिट इज द फर्म कैन हैव एडवांटेजेस ऑफ बिजनेस opportunities. It can buy raw material in bulk at economical price. अब दूसरा बेनिफिट देखो. दूसरा बेनिफिट क्या है? कुछ ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको कि हम बहुत ही लंबे समय तक वेयर हाउसेस में रख सकते हैं. एंड मेरे पास पैसा है एंड प्रोडक्ट इज, जो भी सामान है, वट एवर द रॉ मटेरियल इज दैट इट इज़ अवेलेबल चीप इन अ प्राइस. तो व्हाट आई विल डू, इफ़ आई हैव अ मनी, मैं उसको सस्ते दामों में खरीद करके
और अपने वेयर हाउसेस पे रख सकती हूँ। इकोनॉमिकल प्राइस पे मैंने इसको बाय किया एंड आई कैन कीप इट इन माय बिजनेस। तो इसको बोलते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, दैट वी कैन कॉल इट एज एन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी, सस्ते में सामान मिल रहा था एंड इट इज दैट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल विच वी कैन कीप इन आवर वेयर हाउसेज फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने इकोनॉमिकल प्राइस पे उसको खरीद करके अपने वेयर हाउस पे रख लिया। लेकिन मैंने खरीदा किस चीज़ से? I purchased that raw material from money from a finance. So this is another benefit of finance in a business enterprises. It can hold finished goods in a store to sell them at a higher price in the future. We can keep semi-finished, we can keep finished goods also in our warehouses. Finance था तो मैंने उस पैसे से सस्ते में सामान खरीदा, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया एंड देन मैंने ये सोचा कि चलो अभी तो बेच रहे हैं लेकिन भविष्य के लिए भी बना कर रख लेते हैं और इसको हायर रेट पे हम मार्केट में बेच सकते हैं। दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ बिजनेस फिनेंस। पैसा है तो आई बाय अ रॉ मटेरियल इन चीप फ्रॉम द मार्केट, मैंने फिनिश गुड में कन्वर्ट किया प्रोडक्ट को एंड आफ्टर दैट मैंने फिनिश गुड्स को वेयर हाउसेज में रख दिया एंड व्हेनेवर इट विल बी डिमांडेड फ्रॉम द कस्टमर मैंने उसको हायर प्राइसेस में ज़्यादा प्रॉफिट में मार्केट में बेच दिया। तो दिस इज अनदर बेनिफिट ऑफ बिजनेस फिनेंस। द लास्ट वन इज इट कैन पे टू इट्स क्रेडिटर इन टाइम एंड enhance its market reputation. The another benefit of business finance, अगर हमारे पास business finance है, तो business finance from where we had created? We had created that business finance from shareholder, debenture holder, then public deposits from bank and other financial institution. तो हमने क्या किया? टाइमली अपने क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। You know it very well ना? Creditor is a person from whom we take goods on a credit basis. तो एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में हमें उस अमाउंट को पे करना पड़ता है। तो अगर मैंने अपने क्रेडिटर को विद इन टाइम पे कर दिया तो मेरा रेपुटेशन मार्केट में क्या होगा? मेरा रेपुटेशन मार्केट में बढ़ेगा। एवरी क्रेडिटर मेरे लिए रेडी होगा क्रेडिट पे सामान देने के लिए। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स when we raised adequate finance. What is the first one? Business cycle from production to distribution of goods will be run smoothly. The firm would be able to install the latest plant and machinery. Third benefit, there will be no storage of raw material and other things. The firm can have advantage of business opportunities. It can buy raw material in bulk at economical price. Fifth point is it can hold finished good in store to sell them at a higher price in future. It can pay to its creditor in time and enhance its market reputation. So today I discuss chapter finance, and what are the topic I discuss business. What is business finance? Meaning of business finance, definition of business finance, nature of business finance, and the most important, that is importance of business finance. So that's all for the today. Tomorrow I will come up with other topic under the head financing. Till then, thank you so much.